Hello students, my name is Hirat Notia from JMT English Medium School. Kids, lesson number 3, clothes. I already explained you vocabulary words and meanings in session number 1. In session 2, matlab in today's session, I'll help you to explain people wear clothes according to the season. People मतलब कोई भी पर्सन है वो क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं. रेनी सीजन है देन व्हाट वी प्रिफर टू वेयर रेनकोट्स. विंटर सीजन है देन स्वेटर्स. देन समर सीजन देन कॉटन टी-शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, like that, right? In today's session I'll help you to explain about this. But before I start today's session, I just want to recap you about session number 1, vocabulary words and meanings. फटाफट से vocabulary words और meanings एक बार recall करवा देती हूँ. चलो vocabulary words. Number 1, clothes. C-L-O-T-H-E-S, clothes. C-L-O-T-H-E-S, clothes. C-L-O-T-H-E-S, clothes. Number 2, protect. P-R-O-T-E-C-T, protect. P-R-O-T-E-C-T, protect. Number 3, summer. S-U-M-M-E-R, summer. S-U-M-M-E-R, summer. S-U-M-M-E-R, summer. Number 4, travel. T-R-A-V-E-L, travel. T-R-A-V-E-L, travel. T-R-A-V-E-L, travel. Number 5, uniform. U-N-I-F-O-R-M, uniform. U-N-I-F-O-R-M, uniform. U-N-I-F-O-R-M, uniform. Number 6, natural. N-A-T-U-R-A-L, natural. N-A-T-U-R-A-L, natural. N-A-T-U-R-A-L, natural. Number 7, fibers. F-I-B-R-E-S, fibers. F-I-B-R-E-S, fibers. F-I-B-R-E-S, fibers. Number 8, dirty. D-I-R-T-Y, dirty. D-I-R-T-Y, dirty. D-I-R-T-Y, dirty. Number 9, insects. I-N-S-E-C-T-S, insects. I-N-S-E-C-T-S, insects. I-N-S-E-C-T-S, insects. Number 10, detergent. D-E-T-E-R-G-E-N-T, detergent. D-E-T-E-R-G-E-N-T, detergent. D-E-T-E-R-G-E-N-T, detergent. Number 11, nylon. N-Y-L-O-N, nylon. N-Y-L-O-N, nylon. N-Y-L-O-N, nylon. Number 12, rayon. R-A-Y-O-N, rayon. R-A-Y-O-N, rayon. R-A-Y-O-N, rayon. Number 13, polyester. P-O-L-Y-E-S-T-E-R, polyester. P-O-L-Y-E-S-T-E-R, polyester. P-O-L-Y-E-S-T-E-R, polyester. Number 14, parachute. P-A-R-A-C-H-U-T-E, parachute. P-A-R-A-C-H-U-T-E, parachute. P-A-R-A-C-H-U-T-E, parachute. Number 15, shade. S-H-A-D-E, shade. S-H-A-D-E, shade. S-H-A-D-E, shade. So kids, here we completed our vocabulary words. But once again, let's pronunciate it again, okay? Clothes, protect, summer, travel, uniform, natural, fibers, dirty, insects, detergent, nylon, rayon, polyester, parachute,
and shade. Now let's move to meanings. Number 1, dust मतलब वेस्ट मैटर. डस्ट जो हमारे आजू बाजू में होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डस्ट मतलब वेस्ट मैटर. हमारे घर पे भी डस्ट होता है, हम बाहर जाते हैं वहाँ पे भी डस्ट होता है. क्लियर? हम जो रूम से झाड़ू निकालते हैं ना, रूम से कचरा निकालते हैं ना, वो जो होता है नॉर्मल यूज में 65% क्या होता है? डस्ट होता है. क्या होता है? डस्ट. नंबर 2, वेट बिकम वाटरी. कोई भी चीज गीली होती है उसको हम क्या बोलेंगे? वेट. नंबर 3, रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई. कोई भी चीज को याद रखना, याद आ जाना मतलब उसको आइडेंटिफाई हुआ, आइडेंटिफाई रखना. क्लियर? नाउ नंबर 4, एस्केप गेट अवे. एस्केप कर देना मतलब स्किप कर देना. क्लियर? नाउ नंबर 5, थ्रेड. A long thin strand of cotton, nylon or other fibers used in weaving. हम thread मतलब डोर, हम उसको weaving के लिए यूज कर सकते हैं. जो बहुत ही पतला स्ट्रैंड जैसा होता है वो कोई भी मटेरियल का हो सकता है. कॉटन का भी हो सकता है, नायलॉन का भी हो सकता है, रेयन का, सिंथेटिक, किसी भी टाइप के मटेरियल का हो सकता है. बस पतली सी स्ट्रैंड जैसा होता है. डोरो गुजराती में बोलते हैं ना, डोरो मतलब थ्रेड. थ्रेड मतलब डोरो, डोरो मतलब थ्रेड. क्लियर? नाउ रोप. रोप मतलब रस्सी जो एक क्रिस क्रॉस से ऐसे करके उसको बनाते हैं. वो एक नहीं होती बट उसमें से उसको गूंथ के उसको बनाते हैं. मतलब कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस जो होती है ना वो नॉर्मल नहीं होती है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. क्लियर? A length of thick strong cord made by twisting together strands of hemp. इसको ट्विस्ट कर करके बनाते हैं. Clear kids? Here I hope so you cleared. I mean आपको सब कुछ याद आ गया सेशन 1 का. Now kids, now it's about today's session. Today's session मतलब need for clothes. हमें clothes की क्यों जरूरत होती है? Why we need clothes? Why we need different clothes to wear in different seasons? हम different types के clothes different seasons में क्यों पहनते हैं? क्यों विंटर में रेनकोट नहीं पहनते और रेनी सीजन में स्वेटर नहीं पहनते? क्यों? उसके अकॉर्डिंग सब सीजन्स होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्यों क्लोथिंग पहनते हैं. क्लियर? People wear clothes according to the season. कि सीजन के अकॉर्डिंग पीपल्स मतलब लोगों अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं. जैसा मैंने बोला कि समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स हम पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं. शॉर्ट्स पे ही पहनते हैं, टी शर्ट्स ही पहनते हैं, क्योंकि हम बहुत समर मतलब गर्मी वाली सीजन होती है. इट इज़ टू हॉट, राइट? वी कैन नॉट बेयर एनी थिक क्लोथ टू वेयर बिकॉज झाड़ा कपड़ा होता है, थिक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो गर्मी होती है. Clear? Let us learn more about clothes. Why we need them and what they are made of. हमें clothes पहनने की क्यों ज़रूरत है और वो किससे बने होते हैं clothes. तो ये सेशन हम क्यों पहनना चाहिए और clothes किससे बने होते हैं, ये सेशन में हम लोग ये जानेंगे. Clothes protect us in the following ways. आपको पता है कि हम क्लोथ्स जो पहनते हैं ना वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं. कौन कौन से टाइप्स की चीज से बचाते हैं? एक तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. कि हमें सन की जो हीट आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उससे हमें बचाते हैं. फिर दूसरा, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड. मतलब ठंडी की सीजन में भी वो हमें ठंडी से, कोल्डनेस से हमें बचाते हैं. नंबर 3, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन. कि हम बारिश की सीजन में रेन से भी बचाते हैं. रेनी सीजन में किससे बचाते हैं? रेन से भी बचाते हैं. नंबर 4, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर. हमारे कपड़े, हम आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट प्रेजेंट होता है उससे भी हमें बचाते हैं. हमारे क्लोथ्स
वॉश करने के लिए डालते हैं ना, तब देखना पानी थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आजू बाजू का डस्ट जो होता है ना, उससे भी हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 5, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। मतलब कोई भी इंसेक्ट अगर हमारे आजू बाजू में है, वो हमें बाइट करने वाला होता है, उससे भी हमें क्लोथ्स बचाता है। वो किसको बाइट कर लेगा? क्लोथ को, यानी कि हमें बाइट कर पाएगा नहीं और हमें हार्म भी होगा नहीं। तो ये सारी चीजें होती है जिससे हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नंबर 1, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। कि सन की हीट से हमें क्लोथ्स कैसे बचाते हैं? ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स कूल। किड्स, सनलाइट से हम क्लोथ्स कैसे बचाते हैं? तो कि हम गर्मी में, समर सीजन में वी आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स, राइट? तो कॉटन क्लोथ्स का काम क्या है कि हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, जिससे हमें सन की लाइट जो है इतनी लगती नहीं है। आपने कभी नोटिस किया, अगर हमने हाफ स्लीव्स के क्लोथ्स पहने, हमारे हाथ में अगर सनलाइट आ रही है तो हमारे हैंड्स में जलन होगी, ब्लैकनेस आ जाएगी। बट जो पार्ट में हमने क्लोथ्स पहने वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, राइट? प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। उसमें सनलाइट का जो होता है, सनलाइट की वो कम होती है, डस्ट कम होता है। क्लियर? तो अभी समझ में कि सनलाइट से हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलती है। क्लोथ्स को अगर हमने पहना है तो वो हमें कूल रखने में हेल्प करता है। क्लियर? ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स कूल। नाउ पॉइंट नंबर 2, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। क्लोथ्स हमें ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वूलन्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। हम ठंडी में वूलन्स पहनते हैं, वूलन्स क्लोथ पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वार्म, मतलब हम कोजी फील करेंगे। गर्मी मतलब कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वूलन क्लोथ्स को पहनने से वो बैलेंस हो जाता है, मतलब हमें ठंडी लगती नहीं है, वार्मनेस आ जाती है, मतलब एक लेवल मेंटेन होती है, हम कोजी फील करेंगे। तो वट नेचुरल स्वेटर है, वो भी एक क्लोथ ही है। तो उसने हमें प्रोटेक्ट किया ठंडी से बचने के लिए। क्लियर? ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वूलन्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। Clear? Now point number 3, clothes protect us from the rain. Even clothes also protect us from the rain. When we go out in the rain, raincoats prevent us from getting wet. अगर हम बाहर गए हैं, रेन स्टार्ट हो गया है, तो हम रेनकोट पहन लेते हैं, तो हमें रेन से भी बच सकते हैं। क्लियर? तो रेनकोट भी इट इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, जिससे हम हमारे सेल्फ को रेन से, मतलब गीले होने से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रेनकोट पहन लेते हैं तो हम गीले होंगे नहीं, गीले नहीं होंगे तो हम प्रोटेक्टेड है। क्लियर? When we go out in the rain, raincoats prevent us from getting wet. Now point number 4, clothes protect us from the dust present in the air. कि हमें प्रोटेक्ट करता है क्लोथ्स, कि हमारे आजू बाजू में जो डस्ट है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। People who travel in deserts cover most parts of their body using clothes to protect themselves from dust. आपको पता है कोई भी इंसान होता है जो ट्रैवल करता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कवर रखते हैं, फुल टाइप्स के शर्ट, टी शर्ट्स ऐसा कुछ पहनते हैं, जितनी बॉडी हो सके उतनी कवर करके रख सके। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे बाहर जाएंगे उतना डस्ट ज्यादा होगा, जितना डस्ट ज्यादा होगा हमारे बॉडी पे बट नेचुरली आने वाला है, आएगा और हम गंदे हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि हम फुल कवरिंग्स वाले क्लोथ पहनेंगे तो हमारी बॉडी में डस्ट कम आएगा, अगर डस्ट कम आएगा तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस टाइप से हमारी बॉडी को क्लोथ्स हमारी बॉडी को डस्ट से भी बचाता है। क्लियर? People who travel in deserts cover most part of their body using clothes to protect themselves from dust. Even आपको पता है
डेजर्ट में जो लोग रहते हैं ना, डेजर्ट में बहुत ही उसकी जो रेत होती है ना, सॉइल होती है ना, बहुत ही सूखी सूखी होती है, सूखी होती है। उस वजह से वो लोग अपनी सिर्फ आईज दिखती है उतना वो अपने बॉडी को कवर कर लेते हैं। एक तो वो सॉइल बहुत ही गर्म होती है और वो ऐसी होती है कि हमें चिपक भी जाती है। उस वजह से डेजर्ट में लोग पूरी की पूरी बॉडी को कवर करके रख देते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। आपको पता है ना, एंड्स होती है, बग्स होते हैं, बीटल्स होते हैं ना हमारे आजू बाजू में। वो हमें बाइट्स भी कर लेते हैं, कभी कभी एंट बाइट, बग्स बाइट हमारे में हो जाती है, राइट। तो हमें क्लोथ्स उसमें से भी प्रोटेक्ट करता है। क्लोथ्स एक्ट एज अ कवरिंग फॉर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट। वो हमारी बॉडी का एक कवर बन जाता है, कवर की तरह एक्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। अगर किसी को बाइट करना है यहाँ पे, तो क्या है जाकर दीदी की एक स्लीव आ जाएगी, तो वो स्लीव में बाइट होगा, अंदर बाइट होगा नहीं। उस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लोथ्स एक्ट एज अ कवरिंग फॉर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। क्लियर किड्स? यहाँ पे दीदी ने आपको कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए? 5 पॉइंट्स अबाउट नीड फॉर क्लोथ्स, कि हमें क्लोथ्स की क्यों नीड है और किससे किससे हमें प्रोटेक्ट क्लोथ्स करते हैं। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स वी लर्न इन टुडेज सेशन? 5 टाइप्स, राइट। नंबर 1, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कि सन की हीट से हमें प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, मतलब ठंडी से भी हमें प्रोटेक्ट क्लोथ्स करते हैं। नंबर 3, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन, मतलब रेन से भी हमें क्लोथ्स गीले होने से बचाते हैं। नंबर 4, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर, एयर में जो डस्ट होता है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड लास्ट वन, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंसेक्ट्स बाइट, हम इंसेक्ट्स बाइट से भी क्लोथ्स हमें बचाते हैं। तो किड्स, आपको ये सेशन में पता चला ना नीड फॉर क्लोथ्स, की हमें क्लोथ्स की क्यों नीड है। इन नेक्स्ट सेशन आई हेल्प यू टू एक्सप्लेन अबाउट यूनिफॉर्म्स एंड यूज एंड टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यूनिफॉर्म्स और टाइप्स ऑफ फाइबर्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी। I am sharing a PDF of some blends with you. Try to solve it by your own self. Till then, bye.